پاکستان کی تاریخ کے سب بڑے اور 12ویں عام انتخابات، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے اجراء کا سلسلہ جاری۔ قومی اسمبلی کے 57 حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج الیکشن کمیشن کو موصول۔ مسلم لیگ نون 17 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، آزاد امیدوار 19، پیپلز پارٹی 17 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر، بی این پی، پاکستان مسلم لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان نے ایک ایک نشست حاصل کی۔ 208 نشستوں کے نتائج کا تاحال انتظار۔ سندھ اسمبلی کی 66 نشستوں کے نتائج موصول، پیپلز پارٹی 57 نشستوں کے ساتھ سر فہرست۔ پنجاب اسمبلی کے 86 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول، مسلم لیگ نون 43، آزاد امیدوار 38 کامیاب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 49 آزاد امیدوار کامیاب۔ بلوچستان اسمبلی کے 6 حلقوں کے نتائج موصول، جے یو آئی کے 3 امیدوار کامیاب۔ این اے 130 سے محمد نواز شریف کامیاب۔ این اے 123 لاہور سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، این اے 55 راولپنڈی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ابرار احمد اور این اے 58 چکوال سے مسلم لیگ نون کے امیدوار طاہر اقبال کامیاب۔ این اے 30 پشاور سے شاندانہ گلزار اور این اے 17 ایبٹ آباد 2 سے آزاد امیدوار علی خان جدون کامیاب۔ عام انتخابات کے صوبائی حلقوں کے نتائج کا سلسلہ بھی جاری۔ پی پی 158 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف، پی پی 149 لاہور سے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز بھی کامیاب۔ عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر نگران وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ الیکشن کمیشن، صوبائی حکومتوں، مسلح افواج اور سول آرم فورسز سمیت انتخابی عمل میں شامل تمام اداروں کے کردار کی تعریف۔ انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت جمہوری عمل کو تقویت دیتی ہے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ مسلح افواج کی پوری قوم کو عام انتخابات کے پرامن اور تشدد سے پاک انعقاد پر مبارکباد۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انتخابی عمل کے لیے بھرپور سیکیورٹی میں کلیدی کردار پر فخر ہے۔ آئین پاکستان میں تفویض اختیارات کے تحت انتخابات کا پرامن انعقاد یقینی بنایا۔ 20 خطرات کو رونما ہونے سے پہلے ہی انجام تک پہنچایا گیا۔ ملک میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے آئی ایس پی آر۔ پاکستان ٹیلی ویژن بر وقت اور مستند حقائق پہنچانے کا واحد ذریعہ۔ عام انتخابات کی کوریج کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ملک بھر سے نمائندے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ حالات حاضرہ پر سیاسی ماہرین اور مبصرین کے جاندار تجزیے۔ نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ رفح میں اسرائیلی فضائی حملہ، 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ دیر البلح میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ پر بمباری میں 4 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ نعشوں اور زخمیوں کو الاقصی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 7 اکتوبر سے قابض فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 27,840 ہو گئی، 67,313 زخمی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی رد عمل بہت زیادہ اور اپنی حد سے تجاوز ہے۔ غزہ میں پائیدار جنگ بندی کے لیے سخت دباؤ ڈال رہا ہوں۔ میں غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے سختی سے زور دے رہا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف 1 وکٹ سے کامیابی، 180 رنز کا ہدف 9 وکٹوں پر حاصل کر کے چھٹی مرتبہ فائنل میں جگہ بنا لی۔ متحدہ عرب امارات میں WTA 500 ابوظہبی اوپن، قازقستان کی الینا ربیکینا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔
स्पेन की क्रिस्टियानो बुस्का और जमहूरिया चेक की बारबोरा क्राजेकोवा ने लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अमेरिका में वर्ल्ड सर्फ लीग खवातीन सर्फिंग मुकाबलों का आगाज। ऑस्ट्रेलिया की टाइलर वाइट और अमेरिका की कैटलिन समर्स प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया की मॉली पेकलम भी कामयाब। आलमी चैंपियन अमेरिका की करीसा मोर, लेकी पेटरसन और ब्राजील की तातानिया वेस्टनवेब को राउंड में एलिमिनेशन का सामना। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उस्मा चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब खबरों की डिटेल्स। इंतखाबी मार्का मुकम्मल हो चुका, नताइज की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा, सूबों में होगी किसकी हुक्मरानी, इसके लिए अभी हमें मुकम्मल नताइज का इंतज़ार करना बाकी है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं कि आम इंतखाबात 2024 के लिए कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के नताइज आने का सिलसिला तेजी से जारी है। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 57 हलकों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। 208 नशिस्तों के नताइज का ताहाल इंतजार है। इलेक्शन कमीशन को सिंध असम्बली के 66, पंजाब असम्बली के 86, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 56 जबकि बलूचिस्तान असम्बली के 6 हलकों के नताइज मौसूल हुए हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। अब तक के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने अपने हलकों से कामयाब हो गए हैं। हासिल आम इंतखाबात के लिए चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के नताइज आने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के अब तक 57 हलकों के गैर हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। जी हाँ, इसी हवाले से मजीद डिटेल जानेंगे अपने नुमाइंदे फहद जावेद और रिजवान आरिफ से। रिजवान बताएगा कौमी असम्बली के कितने हलकों के नताइज जो हैं वो इस वक्त मौसूल हो चुके हैं। फहद जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फहद बताएगा किन किन हलकों में बड़े मुकाबले हुए हैं और कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं कि अपसेट्स भी हुए हैं, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन का ये इलेक्शन सिटी बनाया गया है जहाँ पर ये सारा ऑपरेशन मॉनिटर किया जा रहा है। मेरे पीछे आप ये वॉल भी देख सकते हैं, ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की वॉल है जहाँ पर नताइज आ रहे हैं। इस बारे में भी हम आपको ब्रीफ करेंगे। ये बेसिकली इलेक्शन सिटी है जहाँ पर तमाम जो नताइज हैं वो आ रहे हैं और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो फॉर्म 47 को अपलोड कर रहे हैं। उसका गैर हतमी पर सरकारी जो नतीजा है वो अपलोड किया जा रहा है। ये एक पोर्टल बनाया गया है। मेरे साथ रिजवान भट्ट भी मौजूद हैं। पहले वो आपको सूबाई असम्बली के हल्के ब्रीफ करेंगे, उसके बाद मैं आपको नेशनल असम्बली पे बताऊंगा। रिजवान बताइएगा अभी सूबाई असम्बली में क्या चल रहा है, क्या किस किस्म के रिज़ल्ट आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो EMS सिस्टम है उसमें सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बलियों के जो नताइज का सिलसिला है वो आना शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन के जो गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक ये देखें, ये जो फॉर्म 47 के नताइज हैं जिसमें सिंध असम्बली में जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी काफ़ी नशिस्तों पर हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा GDA यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, जमात इस्लामी है, इंडिपेंडेंट है और इसके अलावा जो MQM की जमात है उन्होंने सिंध असम्बली में जो है वो सीटें अपनी वो की हैं। ये गैर हतमी नताइज हैं इलेक्शन कमीशन के। EMS सिस्टम जो फॉर्म 47 है उससे जो है यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये पेशावर की जो KPK असम्बली है उसके रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं। इस वक्त 56 जो सीटें हैं उनके रिज़ल्ट जो हैं वो बता दिए गए हैं और इसके अलावा अभी तक जो 51 सीट्स जो हैं जिनके रिज़ल्ट अभी अवेटिंग है। जो रेड सर्कल में आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर वो जो रिज़ल्ट हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं या जो वहाँ पर इलेक्शंस का अमल जो है वो नहीं हुआ। तो इसके अगर मैं आपको टर्न अराउंड बताता चलूँ तो इंडिपेंडेंट ने यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 49 नशिस्तें जो हैं वो यहाँ पर गैर हतमी तौर पर जो हैं उनको हासिल कर लिया, उनके नताइज यहाँ पर आगे हैं। इसके अलावा जो दीगर पार्टीज़ हैं उनकी भी पार्टी पोजीशन भी जो है वो यहाँ पर बताई गई
کی ہے. اسی طرح جو پنجاب اسمبلی ہے جو کہ جس میں کافی زیادہ سیٹیں ہیں اور پنجاب کا جو صوبہ ہے جس نے یہاں پر حکومت بنانی ہے, اس میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں جو واضح اکثریت نظر آ رہی ہے وہ PMLN کی نظر آ رہی ہے. جو EMS کا سسٹم ہے اس میں جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ, اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ہے, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی ہے جس نے یہاں پر سیٹس نکالی ہیں. اب یہ جو ریڈ کلر کا سرکل ہے یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ الیکشنز پوسٹ پون ہو چکے ہیں. اسی طرح سے پارٹی کا تناسب بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے, پارٹی پوزیشنز کیا ہیں, کون سی پارٹی اس وقت آگے ہے. ظاہر ہے یہ اس وقت حتمی نتائج نہیں ہے کیونکہ ابھی تک یہاں پر 89 نشستوں کے جو ہیں وہ نتائج واضح انہوں نے یہاں پر نشر کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی 207 نشستیں ایسی ہیں جن پر ابھی بھی نتائج جو ہیں وہ آنے ہیں. اس کے بعد جو پارٹی پوزیشن ہے وہ واضح ہوگی. جی اسی طرح اگر میں آپ کو لیے چلوں کہ یہ میرے پیچھے سندھ نیشنل اسمبلی کا پورٹل ہے. نیشنل اسمبلی کی جو کل نشستیں ہیں وہ 266 نشستیں ہیں. اب تک جو رزلٹ آنے ہیں وہ 208 نشستوں کے ہیں. 57 نشستوں کے رزلٹ آ گئے ہیں. ایک نشست پر جو ہے وہ انتخاب ملتوی ہوا تھا ان کی ڈیتھ کی وجہ سے, جو امیدوار تھے ان کی ڈیتھ کی وجہ سے. اسی طرح اس میں پارٹی پوزیشن اگر نیشنل اسمبلی میں دیکھی جائے تو اس ٹائم مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ انڈیپینڈنٹس ہیں. انڈیپینڈنٹس کے بعد جو ہے وہ تیسری پوزیشن پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اور اس کے بعد ایک جو نشست ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی نے حاصل کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بھی جاری دی جا رہی ہے. یہ بیسیکلی فارم 47 ہے جو حلقے کا حتمی رزلٹ ہے اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر جیسے ہی وہ نشست کا رزلٹ آتا ہے یہ والا جو نشست کا نمبر لکھا ہوا ہے وہ گرین ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے جو بھی پارٹی, جیسے کہ اب یہ NA55 میں پیپلز مسلم لیگ نون نے نشست حاصل کی ہے. اسی طرح NA152 میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نشست حاصل کی ہے. اور اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کے نیچے انڈیپینڈنٹ آتا ہے, ساتھ ہی اس کا بریک ایون بھی آتا ہے, اور جس کے رزلٹ ابھی اویٹڈ ہیں وہ یلو ہو جائے گا. اسی طرح اس میں صوبائی اسمبلیوں کا بھی بریک ایون دیا گیا ہے. صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بھی اس میں بریف کیا جا رہا ہے. کل رات کو کچھ نتائج کی تاخیر میں کچھ مسائل تھے تو وہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن حکام کی طرف سے بتایا گیا کہ مواصلاتی رابطہ جو تھا وہ منقطع تھا, جس کے باعث اب جو رزلٹ کی تعداد ہے وہ تیزی سے آ رہی ہے اور تیزی سے یہ عمل جاری ہے. صوبائی اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے رزلٹ تیزی سے جو ہے وہ فال کر رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ آج شام تک جو ہے نتیجہ جو ہے وہ پورا متنی طور پر مرتب کر لیا جائے گا. جی بہت شکریہ فہد جاوید اور رضوان بٹ. ہمیں الیکشن کمیشن میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں کون سی پارٹی کی اس وقت کیا پوزیشن جا رہی ہے, تمام تر اب تک کے جو ریزلٹس ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر اہم خبر آپ کو دیتے ہیں وزارت داخلہ سے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ متعلقہ ریٹرننگ افسرز کی جانب سے انتخابی نتائج میں تاخیر پر عوام اور میڈیا کے تحفظات کا جائزہ لیا گیا ہے. مواصلاتی رابطے کے فقدان کو اس تاخیر کی بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے جو سیکیورٹی کے جامع انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات کا نتیجہ تھا. انتخابی عملہ اور ووٹرز کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جامع اقدامات میں نمایاں وقت صرف ہوا. صورتحال اب اطمینان بخش اور انتخابی نتائج کے باقاعدگی سے اعلان کی توقع ہے. ناظرین، غیر حتمی غیر سرکاری انتخابی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے صوبائی دارالحکومت لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی اہم نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے. لاہور سے اب تک موصول ہونے والے غیر حتمی انتخابی نتائج کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنی نمائندہ سدرا ملک سے. سدرا ملک، یہ بتائیے گا کہ کون کون سی نشستوں پر یہاں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہو چکی ہے. اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن یہاں پر مستحکم ہو چکی ہے. آزاد امیدواروں کی کیا پوزیشن ہے، دوسرے تیسرے نمبر پر کون ہے اور کون کون سے برج جو ہیں وہ الٹ چکے ہیں؟ جی، لاہور جو ہے ہمیشہ سے سیاست کا ایک مرکز رہا ہے اور آج بھی صورتحال ایسی ہے. ہر آنے والے لمحے میں صورتحال بدل رہی ہے، لیکن اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق، فارم 47 کے مطابق NA 118 سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ جیت گئے ہیں 1,05,960 ووٹ لے کر، جبکہ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ رہی. NA 120 سے سردار ایاز صادق جو ہیں وہ پہلی پوزیشن پر رہے، کامیاب ہوئے 68,147 ووٹ لے کر، جبکہ عثمان حمزہ جو ہے آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر رہے. NA 120 سے شہباز شریف جو ہیں وہ جیت گئے اور 59,953 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے. NA 124 کی اگر ہم بات کریں تو رانا مبشر نون لیگ کے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں
देखिए बात यह है कि हर आने वाले लम्हे में सूरत हाल बदल रही है, रिजल्ट्स बदल रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न की हमेशा से ये रवायत रही है कि वो हतमी नताइज को जो है वो हमेशा आवाम के सामने लेके आता है, तो इसलिए हम जो है अब तक वही नताइज आपके सामने पेश कर रहे हैं जो कि हमें फॉर्म 47 के मुताबिक जो है हमें हतमी नताइज मिले हैं। हम अब बात करेंगे हल्का NA-122 से सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं 1,17,190 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि साद रफ़ीक जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। फॉर्म 45 के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ, अता ताड़र जो हैं वो अक्सरियत के साथ जो है वो पंजाब में जो है वो उनकी कामयाबी हुई है। और फॉर्म 45 के ही मुताबिक सूबाई असम्बली के 14 उम्मीदवार के नताइज अब तक आ चुके हैं। मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगी कि फॉर्म 45 के मुताबिक अब तक 14 उम्मीदवारों के नताइज हतमी नताइज जो आ चुके हैं, जिनमें 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि 10 जो हैं वो नून लीग के जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम देखें इस वक्त तमाम जो हैं इदारे जो हैं वो इलेक्शन ट्रांसमिशन जो है बराह रास्त दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न का हमेशा से तुरा इम्तियाज़ रहा है कि वही नताइज आवाम के सामने लेके आता है। दो हम इस चीज़ में टाइम लेते हैं कि हम हतमी नताइज आप तक पहुँचाने में कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि नताइज हतमी हो। तो अब तक के गैर सरकारी खैर हतमी नताइज के मुताबिक जो हैं हमने नताइज आपको दिए, और अभी बदलती हुई सूरत हाल के साथ लम्हा ब लम्हा जो हैं जो भी नताइज आएंगे आपको हम अपडेट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिद्रा मलिक, आप हमें पंजाब की सूरत हाल खुसूसन लाहौर के मुख्तलिफ हल्के जहाँ पर तगड़े मुकाबले हो रहे थे उनके हवाले से अपडेट कर रही थी। अगरचे ये नताइज गैर हतमी गैर सरकारी हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टेलीविजन की भरपूर काविश है कि फॉर्म 45, 47 को सामने रखते हुए नताइज का ऐलान किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे कराची की जानिब। कराची समेत सिंध भर से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदा नौरीन आसिफ हमारे साथ मौजूद है, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। नौरीन आसिफ, बताएगा कराची के कितने हल्कों में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक कितने उम्मीदवारों के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हमारे पास जो है वो अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो 3 हल्के हैं, ज़िला मलीर से 2 हैं, NA-229 और 230, यहाँ से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो वाज़ेह उनको बढ़तरी हासिल हुई है, जबकि जो NA-232 है ये कोरंगी ज़िले का जो हल्का है, इधर से जो है वो MQM के जो कैंडिडेट हैं आसिया इसहाक, इन्होंने वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। और ये अगर बात की जाए सूबाई सतह पर तो टोटल जो सूबाई सतह पर 130 नशिस्तें हैं, उसमें से अब तक जो है वो 66 नशिस्तों के जो हैं वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है मौसूल हो चुके हैं, जबकि 64 अभी भी आना बाकी हैं। और कराची के हवाले से जो है वो तकरीबन 11 जो PS की नशिस्तें हैं उस पर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं वो मौसूल हुए हैं, जिसमें से 6 नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं और 2 MQM को मिली हैं, MQM पाकिस्तान को, 1 जमात इस्लामी की है, 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ने हासिल की हैं। और इसके अलावा अभी मज़ीद सिलसिला जारी है, चूँकि कल के दिन जो है वो काफ़ी एक हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत इलेक्शन कमीशन की काविशें हैं, इसमें कोशिशें अभी भी जारी हैं, नताइज मौसूल होने का सिलसिला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्क्रीन नस्ब की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, ताकि जो है लोगों यहाँ पर जो है वो मीडिया के लिए उनको बर वक्त जो है वो रिज़ल्ट्स जो है मिलते रहें और वो उनको अपडेट करते रहें। इसके अलावा जो है वो जो भी पार्टी पोजीशंस हैं वो हमें काफ़ी पार्टीज़ जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आई थी, लेकिन जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि अभी तक सिंध से जो है वो पीपल्स पार्टी की पोजीशन हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जी बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ, आप हमें कराची से अपडेट कर रही थी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। नाज़रीन, कोयटा की बात करें तो कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदा इसरार अहमद से। इसरार, कोयटा में क्या सूरत हाल है इस वक्त? मुल्क भर की तरह कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में आम इंतखाबात की वोटिंग का सिलसिला गुज़िश्ता रोज 8 बजे शुरू होने के बाद बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का आना भी शुरू हुआ। इसके मुताबिक कोयटा के हल्का NA-262 से आजाद उम्मीदवार मलिक आदिल बाजी पहले नंबर पर, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के मलिक सिकंदर एडवोकेट दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रमजान चकदी तीसरे नंबर पर है। इसी तरह गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का NA-263 से आजाद उम्मीदवार सालार काकड़ पहले नंबर पर, जबकि महमूद खान चकदी दूसरे, तीसरे नंबर पर नवाबजादा हाजी लश्करी रैसानी है। इसी तरह हल्का NA-264 पर सरदार अख्तर मेंगल पहले नंबर पर, नेशनल पार्टी के कबीर मोहम्मद शहीद दूसरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमाल रैसानी तीसरे नंबर पर है।
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने के बाद कारकुन ढोल की ताप पर रक्स करते रहे और मिठाइयाँ तकसीम करते रहे। ताहम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हतमी और सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया इसरार, आप हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि वो आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर कौम के तहे दिल से मशकूर हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। समाजी राबतों की वेबसाइट पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन, निगरान सूबाई हुकूमतों, मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंतखाबी अमले और मीडिया की काविशों को सराहते हैं जिन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि ये अहम मौका पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे का सबूत है। इंतखाबात में अवाम की भरपूर शिरकत और जोशो खरोश जमहूरी अमल के इस्तेहकाम का बायस है। अनवारुल हक काकड़ ने यह भी कहा कि वोटर्स का ज्यादा टर्नआउट हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए अवामी अज़्म का वाज़ेह इशारा है। वोटों के जरिए जाहिर होने वाली आवाज़ें हमारी जमहूरियत की मजबूती में किरदार अदा करेंगी, जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम दाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के चंद वाक़यात के बावजूद मुल्क भर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरी इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की काविशें काबिले तारीफ हैं। और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों के कितने नताइज सामने आ चुके हैं, इस बारे में डिटेल्स लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट से। जी हसन तारिक भट्ट, हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी में भी खासे गैर मुतवक्के नताइज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। मजमूई तौर पर अब तक क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? मैं इस वक्त रावलपिंडी के हल्का NA-55 के अंदर मौजूद हूँ। अब तक इसी का रिजल्ट जो है वो कौमी असेंबली का जो हल्का NA-55 उसका जो रिजल्ट जो है वो सामने आया है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक इब्रार अहमद जो हैं वो पहले नंबर पे आए हैं और उन्होंने 78,542 जो हैं वो वोट्स हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे जो मोहम्मद बशारत राजा हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो 67,101 उन्होंने जो है वो वोट्स जो हैं हासिल किए हैं। जो अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो रावलपिंडी के अंदर अभी सिर्फ NA-55 का रिजल्ट सामने आया है। NA-55 के अंदर जो PP जो सूबाई असेंबली की जो हल्के हैं उनका रिजल्ट अभी कंपाइल हो रहा है। इसी तरह रावलपिंडी के अंदर क्योंकि टोटल 7 हल्के हैं कौमी असेंबली के NA-51 से लेकर NA-57 तक, तो अभी एक का रिजल्ट जो है वो सामने आया है। रिमेनिंग 6 अभी जो है वो कंपाइल हो रहे हैं। अगर सूबाई असेंबली की बात करें तो जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है 38,57,000 की आबादी के साथ, इसके अंदर तकरीबन जो है वो पंजाब असेंबली की जो 14 हल्के हैं वो बनते हैं। उनका रिजल्ट जो है वो अभी कंपाइल हो रहा है। कल के दिन हमने देखा कि सुबह 8 बजे अपने वक्त के मुताबिक जो है वो वोटिंग शुरू हुई, बगैर किसी जो है वो दिक्कत के, बगैर किसी किस्म की नाखुशगवार वाक़े के जो है वो मुसलसल जो है वो शाम 5 तक जारी रही। और अब जिस तरीके से जो है वो वोटों की गिनती पूरी हो रही है, रिजल्ट कंपाइल हो रहा है। मैं इस RO ऑफिस के सामने ही बैठा हूँ। अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर उनके साथ जो असिस्टिंग अमला है वो बैठ के जो है वो रिजल्ट ही कंपाइल कर रहे हैं। जी हसन तारिक भट्ट, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 का इनकाद पर अमन रहा। इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से भी कौम का शुक्रिया अदा किया गया। इलेक्शन कमीशन, मुसल्लह आर्म फोर्सेस और दीगर जो इदारे हैं उनका शुक्रिया अदा किया गया कि पाकिस्तान में पुरअमन तौर पर इंतखाबात का इनकाद हुआ और दिली मुबारकबाद भी दी गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन सिटी कायम किया गया वहाँ से भी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। पेशावर का रुख कर लें तो वहाँ से अनवारुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं। अनवर, बताएगा पेशावर में कितने हल्के हैं और कहां से फॉर्म 45 के मुताबिक कितने उम्मीदवार हैं जिनके नताइज सामने आ चुके हैं? जी अनवर, आप हमें सुन सकते हैं? तो ये बताएगा कि यहाँ पर पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने फीसद रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं, यहाँ से कौन लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली के 44 और सूबाई असेंबली की 113 नशिस्तें हैं। अभी तक तकरीबन 60 सूबाई असेंबली और 20 कौमी असेंबली की नशिस्तों के नताइज मौसूल हुई है, जिनमें से मेजॉरिटी जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है। इस तरह अगर हम सियासी
पार्टियों के बड़े बड़े सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की बात करें तो उसमें एनपी के सूबाई सदर अहमद वली खान सदर से कायम मकाम मरकजी सदर एलपी अमीर हैदर होती मर्दान से आफ्ताब अहमद खान शेरपाव कौमी वतन पार्टी और सिराजुल हक जमात इस्लामी लाहौर और मौलाना फजल रहमान डी खान से अपने अपनी नशिस्तों पर जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। अगर हम यहाँ पेशावर की बात करें तो पेशावर में कौमी असम्बली की चूँकि 5 नशिस्तें हैं, इसमें से NA-28 की नताइज के मुताबिक नूर आलम खान GUI फे के जो है वो लीड कर रहे हैं और NA-29 पर आमिर आयूब जो आज़ाद उम्मीदवार है, इस तरह NA-30 पर शंदाना गुलजार आज़ाद उम्मीदवार है, जबकि NA-31 और 32 पर आज़ाद उम्मीदवारों की वाज़ेह बढ़तरी नजर नहीं आ रही। जी अनवार अपडेट। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -15, अस्तौर -10, करदू कालाम -9, हुंजा गोफस बगरूट -6, गिलगित श्रीनगर -5 और मालम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।